America is not just a country, it is an idea. A very refreshing morning to each one of you. Today again I'm here to continue with the third chapter, that is the US Hegemony. How are you all? Doing fine? Doing well? And watching the videos, I'm very sure that you are learning a lot in this virtual world. Because change is the spice of life. Okay? So before we begin with the slide work, let me tell you that the question that I asked you in my previous video, that in how many parts is hegemony divided? So the answer to the question is here on the screen. Hegemony is divided into three parts. It can be a hard power, it can be a soft power, and it can be a structural power. Yes, this is our title for today. We are talking about the US hegemony. और हमने अपनी previous video में देखा था कि कैसे disintegration of Soviet Union led to the US hegemony. और disintegration कब शुरू हुआ? Disintegration शुरू हुआ in the Cold War era. And the year 1991 declared US as a hegemony. Hegemony का मतलब है power, dominance, rule. ठीक है? तो जब हम यूएस हेजेमोनी के बारे में बात करते हैं तो हमारा मतलब है कहने का कि नाउ आवर वर्ल्ड हैज बिकम यूनिपोलर. यूनिपोलर मतलब सिर्फ एक ही कंट्री है जो पूरे वर्ल्ड में अपना सुपीरियरिटी को एस्टैब्लिश कर सकती है और वो है यूएसए, अमेरिका. सो नाउ विल बी टॉकिंग दैट व्हाट विल हेजेमोनी मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज थ्री. ठीक है? If you remember, in the last video, I had a discussion over hegemony as a hard power, hegemony as a soft and a structural power. So let's start with hegemony as a hard power. जब हम hegemony as a hard power के बारे में बात करते हैं तो हमारा सीधा सीधा मतलब होता है उस कंट्री की मिलिट्री पावर से. हमने कल भी डिस्कस किया अपने प्रीवियस वीडियो में कि कैसे अमेरिका ने बहुत ही यू कैन से बहुत ही पैसा खर्च करके अपनी मिलिट्री को इंक्रीज किया. राइट? अपने पेंटागन बजट में से बहुत ही लार्ज पोर्शन, बहुत ही लार्ज शेयर वो अपनी मिलिट्री में लगाता है इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ. अपने वेपन्स को इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ आर्म्स एंड वेपन्स को और कंट्रीज के कंपैरिजन में इंक्रीज करता जा रहा है. इसलिए अगर हम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो बहुत कोशिश कर रहा है that it remains the superpower in comparison to the other countries. So let's see on to our next slide. Hegemony as hard power. The roots of the word hegemony lie in the classical Greek. The word implies the leadership or predominance of one state. So हमने जैसे कि previous video में पढ़ा था कि हेजेमोनी का मतलब है लीडरशिप या डोमिनेंस ऑफ वन स्टेट ओवर द अदर्स. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? इस चैप्टर में हम यूएस हेजेमोनी ओवर द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड पढ़ रहे हैं. तो देखते हैं कि ये हेजेमोनी हार्ड पावर कैसे है. हार्ड पावर मतलब इन कनेक्शन टू द मिलिट्री ऑफ द कंट्री. Thus, the first meaning of hegemony relates to relations, patterns and balances of military capability between states. It is the notion of hegemony as military predominance that is especially German to the country's position and the role of US in the world politics. तो अगर हम US का रोल देखें वर्ल्ड पॉलिटिक्स में तो वो सब सुपीरियर है. It comes at the first level because its military comes at the first level in comparison to the rest of the world. As I told you in my previous video also, if US wants, अगर वो चाहे तो अपने ही पोल पे बैठा बैठा, अपने ही सेंटर पे बैठा बैठा किसी भी कंट्री को टारगेट कर सकता है. उसके आर्म्स और एम्यूनिशन, उसके आर्म्स और वेपन्स, उसकी साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है दैट इट कैन नॉट बी कंपेयर टू एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. वो जितना पैसा अपनी मिलिट्री में लगाता है तो अगर उतना 12 कंट्रीज मिलकर भी लगाएं अपनी मिलिट्री में, देन ऑल्सो दे कैन नॉट कंपेयर the budget that America is spending on its military. Let's come to our next slide. Do you remember Aisha who lost her leg in an American missile attack? Is it hard power hegemony that has broken Aisha's body if not her spirit?
If you remember students, then in the previous video I discussed a story with you. अगर आपको याद हो तो मैंने 3 लोगों की स्टोरी आपसे डिस्कस करी थी और उसमें सबसे पहले आयशा की स्टोरी थी who wanted to be a medical student but in a missile accident she lost one of her legs. तो क्या हम आयशा के एग्जाम्पल को यूएस हेजेमोनी से रिलेट कर सकते हैं? यस। तो अगर आपको कभी आ जाए कोई एक स्टेटमेंट या कोई एक एग्जाम्पल, जैसे कि आयशा का एग्जाम्पल आया who lost her leg in one of the missile statements, तो मिसाइल एक्सीडेंट को हम कैसे रिलेट करेंगे? यूएस की मिलिट्री स्ट्रेंथ से। इज दैट ओके? So missile accident is related to US military strength and that is why Aisha's example will come under hard power. Is that okay? Moving on to our next slide. अब हम और 2 examples भी पढ़ेंगे. The bedrock of the contemporary US lies in the overwhelming superiority of its military power. अगर हम 1991 से लेकर till date तक देखें तो US has got its superiority over military. US की military is matchless in comparison to other like military of the other countries. उसका जो superiority है वो first level का है. I hope you are able to understand. The US today has military capabilities that can reach any point of the planet accurately. जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आज यूएस चाहे तो किसी भी कंट्री को बहुत आसानी से टारगेट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ. अब मिलिट्री स्ट्रेंथ में न्यूक्लियर एनर्जी भी आ जाती है, मिलिट्री भी आ जाती है और आर्म्स एंड वेपन्स भी आ जाते हैं and the science that is involved, what you call as the robot science that is involved in attacking the other country. तो आज पूरा वर्ल्ड ये जानता है कि अगर एक कंट्री जो सुपर पावर है पूरे वर्ल्ड में वो कौन है? यूएसए. Alright, but even more awesome than the absolute capabilities of US is the fact that no other power today can remotely match them. कोई चाहे भी तो उनसे मैच नहीं कर सकता अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ में. और मिलिट्री स्ट्रेंथ का मतलब यूएस हेजेमोनी एज अ हार्ड पावर. इज दैट क्लियर? देन the US today spends more on its military capability than the next 12 powers combined. Furthermore, a large chunk of the Pentagon's budget goes into military research and development. जैसे कि मैंने आपको बताया अगर 12 देश भी इकट्ठा मिलकर अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन करें तो भी वो यूएस की मिलिट्री को कंपेयर नहीं कर सकते, उसको मैच नहीं कर सकते. वाई? ये फ्री में मिलिट्री नहीं बन रही है, इसका कोई नेचुरल वे नहीं है. the entire country that is US is spending a large part of its budget, जिसको हम पेंटागन बजट कहते हैं, on its military. तो क्योंकि वो इतनी कोशिश कर रहा है सुपर पावर बने रहने की and that is why US is the superpower today and that is why we call it as a hegemonic power. और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम यूएस हार्ड पावर पढ़ रहे हैं, हेजेमोनी एज अ हार्ड पावर. और हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व किया उससे रिलेटेड और वो था हमारे प्रीवियस वीडियो की एक स्टोरी आयशा के बारे में जो कि एक मिसाइल एक्सीडेंट में अपनी एक लेग खो देती है और बिकॉज टुडे शी हैज बिकम हैंडीकैप्ड. तो उसका एग्जाम्पल बहुत ही एप्ट बैठता है यूएस हेजेमोनी एज अ हार्ड पावर को एक्सप्लेन करने में. लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. The military dominance of US is not just based on higher military spending but on a qualitative gap. The technological chasm that no other power can at present conceivably span. अगर आपको थोड़ा कुछ भी याद हो डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन के बारे में तो मैंने एक पॉइंट बहुत बार रिपीट किया था दैट सोवियत यूनियन दो वाज एबल टू प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी अ बल्क क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बट इट वाज नॉट एबल टू मैच इट्स क्वालिटी. राइट? तो अगर आज भी कोई भी कंट्री चाहे तो वो उसकी क्वालिटी को मैच नहीं कर सकती. उसके वेपन्स की जो क्वालिटी है, उसके साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल जो फैक्ट्स हैं, उसे हम कहीं भी मैच नहीं कर सकते एंड दैट इज व्हाई इट इज अ डेवलप्ड कंट्री. इट इज अ सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड. Where US military capability has thus far been shown to have serious weakness is in policing and occupied territory. थोड़ा कुछ ड्रॉबैक्स तो रह ही जाते हैं. तो अगर हम टेरिटोरियल बेसिस पे देखें तो उसका एक आध ड्रॉबैक है बट दैट इज नेग्लिजिबल.
All in all, US is a superpower, US is a hegemony, और अभी हमने खत्म किया US as a hard hegemonic power. और इससे हमने कौन सा अपना एग्जाम्पल रिलेट किया? आयशा का एग्जाम्पल, who had lost one of her legs in a missile accident. Let us now begin with another slide. हेजेमोनी एज अ स्ट्रक्चरल पावर. अगर आपको मेरा प्रीवियस वीडियो याद हो तो मैंने आपको ब्रीफ में बताया था कि जब हम स्ट्रक्चरल पावर के बारे में बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कंज्यूमर गुड्स से, उन गुड्स से जो कि हम बनाते हैं, जो कि हम और देशों में भेजते हैं. तो अगर हम इंटरनेट की बात करें, अगर हम जीपीएस की बात करें, अगर हम एमबीए डिग्रीज की बात करें, और अगर हम एक फ्री ट्रेड की बात करें, तो इन सब चीजों में हम देखेंगे दैट यूएस वाज यू कैन से मच प्रायर टू अस. इज दैट ओके? इंटरनेट का जो फैसिलिटी है वो यूएस में 19th सेंचुरी में बन चुका था. They had already got an idea that इंटरनेट का फैसिलिटी होना चाहिए which was done in order to help its military, ताकि उनको कोई भी परेशानी ना हो गूगल करने में और चीज़ों के बारे में उनको अपने आप पता चलता रहे. आज बहुत सी कंट्रीज हैं जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबिलिटी है, बहुत सी ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने इंटरनेट सैटेलाइट्स बना लिए हैं. बट व्हेन वी टॉक ऑफ यूएसए, देन इट वाज द फर्स्ट कंट्री इन 19th सेंचुरी जिसने इंटरनेट का आइडिया डेवलप किया था. बाकी कंट्रीज ने 1951 के बाद ही किया. तो नाउ यू कैन इजीली इमेजिन द गैप दैट लाइज बिटवीन यूएस एंड अदर कंट्रीज. एक कंट्री ने 1900 में ही बना लिया और दूसरी कंट्री ने 1951 में स्टार्ट किया. तो कितने साल का गैप हो गया? 50 इयर्स का गैप हो गया. तो यूएस इज 50 years more advanced to other countries. I hope आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि हम यूएस को एडवांस क्यों कहते हैं. हम यूएस को एडवांस इसलिए कहते हैं, हम अमेरिका को एडवांस इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी सोच, उनकी आइडियोलॉजी हमसे 50 years ज्यादा है, हमसे 50 years एडवांस है. And if you remember, I started my video with a quote. America is not just a country, it is an idea. True? So let us move on to what is given in the slide. We'll go to the previous slide first. The second notion of hegemony is very different from the first. It emerges from a particular understanding of the word economy. The basic idea is that an open world economy requires hegemon or a dominant power to support its creation and existence. देखो, कभी भी कोई भी कम्युनिटी जब बनती है या कोई भी वर्ल्ड जब बनता है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका एक लीडर हो, उसका एक हेजेमॉन हो. हेजेमॉन मतलब एक सुपर पावर हो, और उसमें सबसे ज्यादा जरूरत क्या पड़ती है? पैसे की, इकोनॉमी की, फाइनेंस की. तो जब हम स्ट्रक्चरल पावर के बारे में बात करते हैं, सो वी आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द इकोनॉमी एंड द कंज्यूमर गुड्स. ठीक है? तो हमें ये याद रखना है दैट वी रिक्वायर यूएस एज अ हेजेमॉन, एज अ सुपर पावर इन मेनी ऑफ इट्स स्फेयर्स. वो कौन कौन से स्फेयर है हम पढ़ेंगे. मैं आपको ऑलरेडी एक बार रिवाइज करवा चुकी हूँ कि चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो एमबीए फैसिलिटीज हो, चाहे वो जीपीआरएस कनेक्शंस हो, तो यूएस वाज एडवांस टू अस, advanced to many other countries by a gap of 50 years. हमसे 50 साल वो ऑलरेडी आगे है, तो एडवांस तो हो गए. Let us see. The hegemon must possess both the ability and the desire to establish certain norms for order and more sustain the global structure. उसको कुछ norms, कुछ rules and regulations तो बनाने ही पड़ेंगे. जो भी लीडर होता है, या लेट्स से ऐसा सोचते हैं कि एक कंपनी है और वहां पर एक लीड है, तो उस लीड को अपने टीम को चलाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स तो बनाने ही पड़ेंगे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बनाने ही पड़ेंगे, और वो खुद उसे फॉलो करेगा तभी उसकी टीम उसे फॉलो करेगी. अदरवाइज ही विल सेट अ बैड एग्जांपल फॉर हिज टीम. अगर वो खुद ऑनलाइन नहीं होगा, खुद काम नहीं करेगा, खुद प्रोजेक्ट्स और टारगेट्स ओवर नहीं करेगा, तो उसकी टीम कहेगी हमारा बॉस, हमारा लीड तो खुद ही बड़ा लेजी है, तो हम क्यों करें, हम भी कल करेंगे, परसों करेंगे. दैट इज व्हाई US has to establish norms. US has to establish principles. कुछ ऐसे rules and regulations उसको बनाने पड़ते हैं और फिर उसको follow करना पड़ता है ताकि बाकी जो countries हैं वो भी उसे देख के follow करें. Let us move on to our next slide.
Hegemony in the second sense is reflected in the role played by US in the province global public goods. तो जब भी हम public goods की बात करते हैं, जब भी हम economy की बात करते हैं, जब भी हम finance की बात करते हैं, we are talking about US hegemony as a structural power. और मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि US 28% of economic finance provide करता है world budget में. It is a big ratio. Okay. Let us see what are public goods. It can come as a 2 marker for you. Public goods, by public goods we mean those goods that can be consumed by one person without reducing the amount of the good available for someone else. यानी कि पब्लिक गुड्स वो होती हैं कि अगर हम उसे यूज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे यूज करने से दूसरे जने के लिए खत्म हो जाएंगी. आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि वर्ड कंज्यूम करने का मतलब क्या होता है. मैं अगर नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ. मैंने 2 एप्पल्स खरीदे, ठीक है. एक एप्पल को मैंने खा लिया. आई हैव ईटन 1 एप्पल एंड द अदर एप्पल इज स्टिल इन माई हैंड. तो जो एप्पल मैं खा चुकी हूँ, द एप्पल दैट आई हैव ईटन इज कंज्यूम्ड बाय मी एंड द अदर एप्पल दैट आई हैव इन माई हैंड इज माई एसेट. उसको मैंने सेव करके रख लिया, उसको मैंने सेव कर लिया, वो मेरी सेविंग बन गई, मेरा एसेट बन गया, राइट. तो कंज्यूम करने का मतलब उसको खर्च कर देना. अगर कोई चीज है, कोई ईटेबल है तो उसे खा लेना, दैट इज कंजम्पशन. आई होप यू आर एबल टू रिलेट इट वेल. सो हियर बाय पब्लिक गुड्स व्हाट डू वी मीन? पब्लिक गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक जने के कंज्यूम करने से दूसरों के लिए खत्म नहीं हो जाती. It is available for all and that is why they are called as public goods. The word public means पूरी public के लिए. Okay, so when we talk about US hegemony as a structural power, we are relating it to the economy and the finance of US and also that how it is producing and making available the public goods to the entire world. Let us move on to our next slide. Fresh air and roads are examples of public goods, right? Then, in the context of the world economy, the best example of global public goods are sea lanes of communication, जिसे हम SLOCs कहते हैं. तो ये फुल फॉर्म के लिए आ सकता है और एग्जाम्पल आ सकता है. कोई 2 एग्जाम्पल बताइए पब्लिक गुड्स के, फॉर अ 1 मार्कर और अ 2 मार्कर. तो आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए दैट फॉर एग्जाम्पल आई आस्क यू गिव मी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक गुड्स. फ्रेश एयर एंड रोड्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक गुड्स. ओके, SLOCs का फुल फॉर्म बताइए. सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, द सी रूट्स कॉमनली यूज्ड बाय द मर्चेंट शिप्स. फ्री ट्रेड, ट्रेड मतलब बिजनेस. फ्री ट्रेड इन एन ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट यूएसए. तो अगर वो लेन्स ना बनाता जहां पे फ्री ट्रेड हो पा रहा है तो कभी भी फ्री ट्रेड पॉसिबल नहीं था वर्ल्ड इकोनॉमी में, ठीक है. Then, since the decline of British naval power after the Second World War, the multi-oceanic US Navy has played this role. तो जो US Navy है वो ब्रिटिशर्स के बाद, Second World War के बाद ब्रिटिशर्स के हाथ से तो ये पावर छिन गया था and that is why they are playing a great role in maintaining this navy. Moving on to the next slide. Another example of a global public good is internet. ये सब चीजें मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आता है 2 मार्कर के लिए, दैट गिव मी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक गुड्स. तो आप कुछ भी लिख सकते हो. यू कैन राइट अबाउट इंटरनेट, यू कैन राइट अबाउट द GPS, you can write about the MBA degrees, you can write about the fresh air and the clean roads. You can also write about the sea lanes available for free trade. Is that okay? Then let us move on. What is written? Although it is seen today as making the virtual world of the World Wide Web possible, we should not forget that internet is the direct outcome of a US military research project. मैंने आपको बताया था कि आज बहुत सी कंट्रीज इंटरनेट सैटेलाइट्स को यूज करती हैं. उन्होंने खुद अपने सैटेलाइट्स बना लिए हैं. बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंटरनेट का आइडिया कहाँ से आया था. The idea came from US. Why? Because it was trying to help its military in order to Google whatever they wanted. America is not just a country, it is an idea. The US share of the world economy remains to be 28%. मैं आपको बता चुकी हूँ कि world economy में US का कितना शेयर है. 28% of the finance is given by US. The US also accounts for 15% of the world trade और 15% business भी कहाँ से आता है? US से. Let us move on to the next slide.
There is not a single sector of the world economy which an American firm does not feature in the top 3 list. It is important to remember that economic respondents of the US is inseparable from its structural power, which is power to share the global economy in a particular way. तो हम नहीं भूलना चाहिए कि चाहे वो कोई भी पब्लिक गुड हो, कहीं ना कहीं यूएसए का शेयर तो उसमें आता ही है. And that is why it is listed as the one of the 3 you can say superior economies of the globe. Let us move on to our next slide. A classic example of the structural power is US academic degree called the Masters in Business Administration, that is MBA. आज हर कोई MBA करना चाहता है. You know, बैंक की नौकरी मिलने के लिए भी आपको MBA की ज़रूरत है. कहीं आपको बिजनेस ज्वाइन करने के लिए भी MBA की ज़रूरत है. If you are you can say if you have already done your science and medical, at times then also you are required. If you are an engineer, पहले तो engineering करो, लेकिन MBA ज़रूरी है क्योंकि आपको business instinct तो होना बहुत ज़रूरी है. तो ये business को एक ट्रेड बनाने का और व्हाट यू से एज बिजनेस को कॉलेजेस और स्कूल्स में पढ़ाने का आइडिया कहाँ से आया? यूएस से. ऑलराइट. And then the first business school in the world, the Wharton School at the University of Pennsylvania, was established in 1881. The first MBA course was initiated around 1900 and the first MBA course outside the US was established only in 1950. 50 years का difference अभी भी आप बहुत clearly देख सकते हैं. मैंने आपको इंटरनेट में भी बताया था दैट इंटरनेट में भी अराउंड 50 इयर्स का डिफरेंस था. और जो फर्स्ट एमबीए स्कूल इस्टेब्लिश हुआ, फर्स्ट एमबीए डिग्री जब निकल कर आई तो वो था 1900 में, 19th सेंचुरी में. और बाकी सब कंट्रीज ने एमबीए की डिग्री देना कब शुरू किया? 1951 में. अगेन द लैप्स ऑफ 50 इयर्स. तो यूएस हमसे कितना आगे है? 50 इयर्स आगे है. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. दैट इज प्रोबेबली आवर लास्ट स्लाइड फॉर टुडे. It says this takes us back to our South African friend Jabu. और अब हम last you can say जो second example था हमारी स्टोरी का जबू का, जो आर्टिस्ट बनना चाहता था बट उसके पेरेंट्स उसको MBA कराना चाहते थे, उसके बारे में रिलेट कर सकते हैं. Hegemony explains why Jabu's father is insisting that his son gives up painting and studies for the MBA instead. तो अभी तक हमने अपने 2 एग्जाम्पल्स को रिलेट किया है. एक है आयशा का जो कि हमने उसको हार्ड पावर से रिलेट किया, हेजेमोनी एज अ हार्ड पावर. और ये सेकंड एग्जांपल था जबू का जो कि आर्टिस्ट बनना चाहता था बट उसके पेरेंट्स उसे एमबीए करा के बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहते थे. तो लेट अस रिलेट दैट जबूज एग्जांपल विद हेजेमोनी एज अ स्ट्रक्चरल पावर. हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हेजेमोनी एज अ सॉफ्ट पावर कि हाउ इज द थर्ड एग्जांपल दैट इज एंड्री का एग्जांपल कैसे रिलेट हो सकता है फॉर यूएस एज अ सॉफ्ट पावर. Till then, stay tuned, and before I close my video, I would like you to answer me a question. The question for today is that if you say or if I say that America is not just a country, it is an idea. So how will you be able to prove this statement for a 4 marker? Tell me any 4 points through which you can prove this statement that America is not just a country, it is an idea. Thank you so much.